Assalamualaikum friends, I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. We have started a series of lectures about the English composition and grammar. So we have begun our first lecture with the sentence. So what is sentence? So first of all, we will understand a sentence, elements of sentence, and then we will bring new topics for you people. Okay, in this lecture we have a sentence. So what is basically a sentence? Sentence has two basic elements. It's basically a group of words which has a subject and a predicate and gives a clear and complete sense is called a sentence. Sentence बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना बहुत लाजमी है. एक जो है सब्जेक्ट है जो कि डूअर ऑफ द एक्शन है और सेकंड प्रेडिकेट है. ठीक है. अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन. इट कैन बी अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस अबाउट विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है कि जो काम करने वाला है, और जो कोई थिंग हो सकता है, कोई चीज. ठीक है, कि वो काम कर रहा है. और सेकेंडली कोई प्लेस हो सकता है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, कोई काम कर रहा है. इन अ सेंस दैट सेकेंड हमारे पास है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द अफेक्टेड थिंग और अ पर्सन, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है. अ पर्सन और अ थिंग विच इज अफेक्टेड बाय दैट एक्शन which is done by the subject. And we have also a third element, and that is the complement. So complement भी sentence में बहुत बड़ा अपना एक रोल अदा करता है, जो कि tells about the nature of a subject or a thing. Sometimes it tells about the nature of a subject and sometimes it tells about the nature of an object. So this is called complement. We have three examples over here. So the first example we have that Fariha is writing a letter. You know, in this sentence, Fariha is the subject, okay, and writing is the object. Later, sorry, writing is a verb basically. In our next videos, we'll also talk about the verbs and types of verbs as well. So later we have the object. Got it? And in our second sentence, it says that Ali is going to school. So Ali is again a subject, going is the main verb. You might be looking or watching over this, that what is also a verb, but is a B form of verb. But if there is the presence of a main verb, then it works like a helping verb. So in both these sentences, the is in the first sentence and is in the second sentence, as well in the third sentence, is working like the helping verb. It tells about the sentence, about the sense, either is in present, past, in or in future. So Ali is going to school. So here is, you know, that Ali is the subject and school is your object. ठीक है. और थर्ड सेंटेंस हमारे पास है कि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री. देखें, अगर आप ये लिखें कि पाकिस्तान इज अ कंट्री, तो आपको समझ आएगा कि भाई पाकिस्तान नाम लेते हुए पाकिस्तान एक कंट्री आपके माइंड में आ जाता है. इसी तरह इंडिया इज अ कंट्री, अमेरिका इज अ कंट्री, ओके, रशिया इज अ कंट्री. सो इफ वी कॉम्प्लीमेंट द सेंटेंस, अगर हम सिर्फ ये कहें कि पाकिस्तान इज अ कंट्री, तो हमारी जो सेंस है, जो एक सेंटेंस को बनाने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीज हैं वो हमारे सेंस में आ जाती हैं, जो कि एक पाकिस्तान है, ठीक है, इज अ कंट्री. ये तो सेंटेंस हमें बाद में समझ आ रही है, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए हम एक और वर्ड ऐड करते हैं, या फ्रेज या क्लॉज इसमें ऐड करते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में इसको समझेंगे. There is a developing country. ठीक है. So now we have types of sentence. In types of sentence, basically we have three types of sentences: simple sentence, compound sentence, and the third one we will write later on. That is the compound sentence. Simple sentence is also called independent clause. Simple sentence को independent clause भी कहा जाता है. Independent clause इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस sentence में हमें जो सेंटेंस का जो सेंस है वो हमें सही तरह से समझ आ जाती है. ठीक है. इस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या सिंपल सेंटेंस है, इट हैज मोस्ट सिंपल बेसिक एलिमेंट्स. इसकी जो बेसिक एलिमेंट्स है, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और समटाइम
अ कॉम्प्लीमेंट जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है, और समटाइम द सेंटेंस कैन आल्सो बी कंप्लीटेड बाय यूजिंग a complement which completes the whole sense of a sentence. Okay, for example, we have a sentence over here: Ali is waiting for the train. ठीक है, अब ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस बताता है कि भाई इस सेंटेंस में अली क्या कर रहा है, ही इज बेसिकली वेटिंग फॉर द ट्रेन। ओके, अच्छा, सेकंड टाइप जो है वो कंपाउंड सेंटेंस का है। कंपाउंड सेंटेंस मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, इसको अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, इसको अगर हम आपस में मिलाएं तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। And these compound sentence are connected with a coordinating conjunction. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में बात करेंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको फैन बॉय से आप याद कर सकते हैं। फैन बॉय से मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, yet, and so these seven conjunctions are basically the coordinating conjunction जो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाता है। ठीक है, उनके मिलने से एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। We have the first example: Ali waited for the train but the train was late. अब यहां पर जो but यूज हुआ है, it worked as a coordinating conjunction। ठीक है, जो कि असल में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाता है। हमें सिर्फ एक पार्ट से भी इस सेंटेंस से हम सेंस ले सकते हैं कि अली वेटेड फॉर द ट्रेन। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, और इसी तरह एक और सिंपल सेंटेंस है दैट द ट्रेन वाज लेट। तो अलग अलग भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे आपस में मिलाएं so these two simple sentences will be connected by a coordinating conjunction which is but over here। और जब ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस या क्लॉज आपस में मिल जाते हैं तो इसे हम फिर कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। The next example we have: Fazila left on the bus before I arrived, so I did not see her. अब इस सेंटेंस में Fazila left on the bus before I arrived, it is one part of a compound sentence which is independent, by which we get the complete sense. After using a coordinating conjunction which is so, in this sentence, I did not see her, मैंने उसे नहीं देखा। So over here, I did not see her, it is second sense of a sentence. So the next type is a complex sentence. Complex sentence is made up of an independent clause and one or two dependent clauses. जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो इसमें दो क्लॉज होते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, जिसे एक सेंटेंस में उसका सेंस कंप्लीट तौर पर हमें समझ आ जाती है। ठीक है, एंड सेकेंडली जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सेंटेंस में कभी भी अकेला नहीं आता। जो डिपेंडेंट क्लॉज है, कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला नहीं आता, लेकिन but can be connected with an independent clause by a subordinating conjunction। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल वी हैव बिकॉज फजीला अराइव्ड एट द बस स्टेशन। अब ये जो बिकॉज है, दिस इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसने मिलाया है डिपेंडेंट क्लॉज को, फजीला अराइव्ड एट द बस स्टेशन। अब इससे हमें बात समझ नहीं आती। वैसे अगर इसको हम इसके ऊपर हाथ रख के हम ये कहें कि भाई फजीला अराइव्ड एट द बस स्टेशन, तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें बिकॉज फजीला अराइव्ड एट द बस स्टेशन, तो इससे हमें सेंटेंस का कंप्लीट सेंस समझ नहीं आता, क्योंकि भाई ये जो बंदा कह रहा है ये असल में कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन इसने अपनी बात को कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो इसने आधी बात कर दी। तो जहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाते हैं सेंटेंस के किसी भी पार्ट के साथ, तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। एंड इन द सेकंड सेंटेंस वी हैव व्हाइल शी अवेटेड एट द ट्रेन। ठीक है, अब यहां पर भी हमें बात कंप्लीटली तौर पर समझ नहीं आ रही, वो क्योंकि ये कह रहा है कि व्हाइल शी अवेट एट द स्टेशन, भाई उसने
क्या स्टेशन पर ट्रेन का वेट किया, लेकिन अब बात ये नहीं है भाई उसने वेट किया कि फिर उसके बाद बस आया, क्या ट्रेन आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए हमें बात यहाँ पर समझ नहीं आ रही, तो इसलिए फिर हमें इस जो दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इस कोऑर्डिनेटिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाएंगे ताकि एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाती है। तो जहां पर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज या और डिपेंडेंट क्लॉज आपस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के मदद से आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को कि जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिला लेते हैं, तो फिर इसकी मदद से हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अपना जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो मिला के हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिल जाती है, जिसे हम फिर कह सकते हैं कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। although, as, because, before, even though, if, since, though, unless, until, when, whenever, whereas, wherever, and while. So these are the examples of subordinate conjunctions. So now in after types of sentence there are two conversions about the complex sentence to remember. In tip 1, if we put the dependent clause before independent clause, then there must be a comma before an independent clause. Like for example, because Fazila arrived at the bus station before noon, I did not see her at the station. क्योंकि फजीला बस स्टेशन पर पहले पहुंच चुकी थी, इसलिए आई डिड नॉट सी हर, मैंने उसे नहीं देखा। तो इस सिचुएशन में जब हम डिपेंडेंट क्लॉज पहले लगा देते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज की पहचान ये है कि इसके साथ कोड सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगते हैं, ठीक है। तो इस हालत में फिर हम यहाँ पर कॉमा यूज करेंगे बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। इन द सेम वे इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, while she waited at the station, this is the dependent clause। इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं कि इसकी पहचान तो पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होती है। सेकेंडली इससे हमें जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई वो असल में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। while she waited at the station, Jamila realized that the train was late। जबकि उसने स्टेशन पर वेट किया, इसलिए जमीला ने ये झांचा या ये रियलाइज कर दिया कि भाई कि ट्रेन लेट था, ठीक है। अब सेकंड टिप में अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट की जगह लेकर आए और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट की जगह लेकर जाएं, तो उस सिचुएशन में फिर हमारे पास कॉमा नहीं आता। लाइक फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट सी हर एट द स्टेशन बिकॉज फजीला अराइव्ड एट द बस स्टेशन बिफोर नून। तो इस सिचुएशन में जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लिखते हैं, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद जब डिपेंडेंट क्लॉज को हम स्टार्ट करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो फिर हम यहाँ पर कॉमा नहीं लगाते। दिस इज वन ऑफ द रूल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, जमीला रियलाइज्ड दैट द ट्रेन वाज लेट व्हाइल शी वेटेड एट द स्टेशन। अब इस एग्जांपल, इन दोनों एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि भाई इन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इनको हम दो तरीके से लिखते हैं। पहले इंडिपेंडेंट को लिख सकते हैं, फिर बाद में डिपेंडेंट को, इसी तरह इन द सेम वे वाइस वर्सा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल start our we'll start our dialogue, we will start our next topic from the parts of speech. Thanks so much for watching.